आपने बिल्कुल सही कहा कि अमन न्यूज़ हमारे साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ और बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है इसका। मैसेज सबको ये लिए यही है जी कि जो भी पॉल्यूशन है वो मदर अर्थ कभी पॉल्यूट नहीं करती, वो हम सब पॉल्यूट करते हैं। अब इसको अगर मदर अर्थ को हमें बचाना है, अब सबके बारे में हम सबको खुद को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशंस को इसके पॉल्यूशन के बुरे प्रभावों से बचाना है, तो हमें आज ही इसके बारे में जागरूक होना। एक तरफ जैसा प्राधिकारी ने बताया कि हर अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट फेसिंग द एयर प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। जून ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट फेसिंग द वाटर प्रॉब्लम। How the matters have progressed in the writ court, this is exactly the power that the writ court uses. Now today that power has been given to the NGT. And mind you, the order of the NGT, if it's violated, there is a penalty of 3 years imprisonment, 10 crore fine, for companies 25 crores. Nissan Magnite. They have the power to restore the environment and they can impose costs for that. Now, if you are aware of how the matters have progressed in the writ court, this is exactly the power that the writ court uses. Now, today that power has been given to the NGT. And mind you, the order of the NGT, if it's violated, there is a penalty of 3 years imprisonment, 10 crore fine, for companies 25 crores. And in all these statutes, whether it's the NGT, Air Act, Environment Protection Act, Water Act, the onus on the government bodies is very high. So, suppose if CPC or state board or any authority of the state, municipal body, for the CBI in the Upar fire tragedy case. MAM has also extended valuable assistance to the Supreme Court of India as amicus curiae in a case of seminal importance for Delhi, that is MC Mehta versus Union of India, which is popularly known as the Delhi air pollution case. MAM has also assisted Mr. Salve in the TN Bodhvarma case, popularly known as the forest case, and in the Bombay Mills land case. MAM has risen to the top of her profession by sheer dint of her hard work, industry and dedication, and we are indeed honoured to have her here as a guest speaker. Our second speaker, Sri Ashwini Kumar Dubey, is a well-known advocate on record of the Supreme Court of India, having 20 years of experience in the legal profession. He has a thriving practice at the Honourable Supreme Court and High Courts and at the National Green Tribunal. Sir has filed many petitions before the Honourable Supreme Court and the NGT to protect and restore the environment. Roads have also been constructed in the industrial areas. Thanks to his intervention, power industries have been directed to upgrade their electrostatic precipitator mechanism. why is environment so important today? Can anybody randomly tell me why? Why do you think suddenly it's become the buzzword? Why is it so important today? So we've been having environment mitigation since the 80s. That why don't you have a plan in place to react to these? I will share my journey as a lawyer, my contribution for my area, and what is the need of the hour. How the trial courts, which are the courts connected with the root, may come into the picture, how the lawyers practicing in different forums of trial courts may contribute in strengthening, empowering and restoring the environment. India is a country of 140 crores people. We need energy. I myself belong to an area which is generating 21,000 megawatt electricity every day.
Lakhs of metric ton of coal is being burnt every day. Hundreds of kilograms of mercury is generating every day. The lakhs of metric ton of fly ash is generated every day. We don't have solution to that. There is a watchdog, there is an environmental court, there is Supreme Court, as rightly said by Aparajita ji, that the writ jurisdictions are there, the NGT has been vested with powers, but ultimately the need of the hour is the collective responsibility. And that collectivity comes from the grassroots. The grassroots level, where the trial judges which are connected with the grassroots society, trial courts are connected with each and every individual who may be pioneer in enforcing the judgments, not only passed by the appellate fora, but different authorities like the NGT and also Honorable Supreme Court. No doubt, after enactment of the NGT Act, the powers of West under Article 226 of the Constitution of India has been partly taken over. But now, the need of the hour is the constitutional guarantee. As I was hearing to सतीश उपाध्याय जी, आप धैर्य से थोड़ा सुनिएगा, 10 मिनट का समय टी ब्रेक का मैं थोड़ा सा कंज्यूम करूंगा क्योंकि आउट ऑफ टाइम हम जा रहे हैं. बट इन एनी केस व्हाई देयर इज अ नीड. एक तरफ जैसा अपराजिता जी ने बताया कि हर अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट फेसिंग द एयर प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है. जून ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट फेसिंग द वाटर प्रॉब्लम. सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं भरत पराशर, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जैसा कि सब जानते हैं कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और इस अथॉरिटी का जो 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं, सबसे पहला लोगों में जागरूकता कानून के बारे में, उनके राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में, लीगल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, लोगों को उनके राइट्स ड्यूटीज़ कानून के बारे में जानकारी देना, लीगल लिटरेसी। और जो भी भारत की जनसंख्या, कोई भी वर्ग ऐसा है जिसे किसी भी प्रकार से लीगल सहायता की ज़रूरत है, कानूनी सहायता की ज़रूरत है, जिसे हम लीगल एड कहते हैं, उसे प्रोवाइड करने में कार्य करती है। अमन न्यूज़ भी आपके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। आज का जो मुद्दा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से आप देखते हैं कि परेशानियाँ आ रही हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि अमन न्यूज़ हमारे साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ और बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है इसका। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, और अभी सतीश उपाध्याय जी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी उस दिन विज्ञान भवन से इस 75 साल की आज़ादी के वर्ष में एक फंक्शन कर रहे हैं जगत गुरु सदगुरु जी के साथ। उसी दिशा में हमारी भी दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एक पहल है कि हम अपने राज्य के दूर दूर कोने तक पहुँचें और लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के विषय में जागरूक करें, उन्हें जानकारी दें। हमने इसी दिशा में सबसे पहले इस फंक्शन को 29 तारीख को असोला भाटी में करा। जैसे आप सब जानते हैं कि अब हमारे जंगल का क्षेत्र भी सीमित होता जा रहा है, तो इसलिए सबसे पहले जागरूकता अभियान हमने वहीं से शुरू करा टेरिटोरियल आर्मी के साथ। और उसी दिशा में अब हमारे सेक्रेटरीज हर डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता जानकारी दे रहे हैं। और आज हम एनडीएमसी के साथ मिलके एक हमने सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें हम दिल्ली के 120 जो हमारे लीगल एड पैनल हैं, लॉयर हैं, उनमें से हमने 120 लोगों की टास्क फोर्स तैयार करने का एक बीड़ा उठाया है, जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अथॉरिटी के बिहाफ पर दिल्ली में जगह जगह वर्कशॉप को एड्रेस करेंगे, लोगों में जाएंगे। और कोई भी ऐसे केस आते हैं जिसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कोई मदद कर सकती है, ये 120 लोग उसमें मदद करेंगे। जी, कानून की जब बात की जाती है तो हमने देखा है कि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डोर टू डोर जाकर भी कैंपेन की थी, तो क्या इस बार भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये
5 तारीख को हम इसको हमारा प्रोग्राम कल्मिनेट होगा जेल में, और कल हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स, बच्चों के साथ एक वेबिनार कर रहे हैं। परसों हमने डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली सरकार के उनके साथ मिलके दिल्ली के स्कूलों के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम हमारा 5 तारीख के बाद भी जारी रहेगा। और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम लोगों के पास तक पहुँचे, दूर दूर गांव में भी पहुँचें, उनको उनके जो वाटर पॉल्यूशन की दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में जागरूक करें, और ये जारी रहेगा कार्यक्रम। मैं चाहूँगी कि आप अमन न्यूज़ के दर्शकों को लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कोई संदेश आज के मेरा लिए। संदेश यही रहेगा कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट के प्रति आप जागरूक रहें। हम तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो जब तक हम अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो हम अपने राइट्स को कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, मेरा नाम सुशांत चंगोत्रा है और मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी पोस्टेड हूँ। आज का जो मुद्दा है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है। आप उस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या ऐसी ज़रूरत लगी कि इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए या सेशन हमें करना चाहिए? देखिए, एनवायरनमेंट हम सब जूझ रहे हैं। एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। अभी पीछे गर्मी थी तो बहुत सीवियर हीट वेव थी, और जब विंटर्स आती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम सब स्मॉग से बहुत परेशान होते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं कि स्कूलों में छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस दिशा में कुछ ना कुछ कार्य तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अब क्योंकि 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो हमने सोचा कि इसको एक दिन की सेलिब्रेशन की बजाय एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाए, जिससे कि हम सोसाइटी के हर एक कोने में जाकर हर एक व्यक्ति को अप्रोच कर कर उनको एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें, उनको उनके राइट्स के बारे में बता सकें और उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में भी अवगत करा सकें। इसी श्रृंखला के चलते हुए आज हमने यहाँ पर एक सेमिनार कंडक्ट करवाया है। हमारे DSLSA के और DLSS के पैनल पे एडवोकेट्स होते हैं, जिनको हम लीगल एड एडवोकेट्स कहते हैं। उन्हीं पैनल्स में से हमने हर एक ज़िले से दिल्ली के 10-10 एडवोकेट्स को यहाँ पे नॉमिनेट करवा के बुलवाया। अब उनको हम ट्रेन करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए। अब वो ऑर्डर्स जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में हो रहे थे, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज जो केसेस की है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं कि कोई पब्लिक लेक है, उसके ऊपर किसी ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सिविल और क्रिमिनल साइड पे। तो हमने सोचा है कि क्योंकि अब जो एनवायरमेंट लिटिगेशन है ये जन जन तक जा रही है और हम लिटरेसी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपने जो पैनल के एडवोकेट्स हैं उनको भी और तैयार कराना चाहिए और उनको और सेंसिटाइज करना चाहिए, ताकि जब भी कोई इस एनवायरमेंट रिलेटेड केस हो तो वो पहले से तैयार हों और बहुत अच्छे से लोगों की मदद कर सके और बहुत अच्छे से उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन करा सके। तो हमने देखा है कि अमन न्यूज़ ने काफ़ी कवरेज भी की है, तो डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई गई है, तो इस बार भी हमें क्या इस तरह से देखने को? मैडम, इस बार हमने पूरी दिल्ली में डोर टू डोर के कैंपेन के अलावा हमने बहुत जगह पे जाकर एनवायरनमेंट लिटरेसी के बारे में लोगों को बताया है, प्रोग्राम्स किए हैं, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, लोगों को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया। बहुत सारी जगह पे तो लोगों को इंकरेज किया गया कि वो प्रदूषण को बचाने के लिए अपनी दिनचर्या के अंदर छोटे छोटे बदलाव कैसे कर सके। जो हमारे घर के आसपास प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो प्लास्टिक है, उस वेस्ट को कैसे बचाया जा सके। अब मेरे को एक बहुत खुशी हुई, कल भी ऐसे एक प्रोग्राम में हम थे, वहाँ पर छोटे छोटे 5-5, 6-6, 7 साल के बच्चों ने अपने घर के जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उनको एक पौधे प्लांट्स के जो हम फ्लावर पॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। उनको बहुत मतलब जो प्लास्टिक हम घर पे फेंक देते हैं रैपर्स, उससे कवर किया और वो हमारे घर पे आज सुसज्जित हैं। तो ये बहुत अच्छी एक पहल मेरे को लगता है, ज़रूरी भी था कि बच्चों के अंदर जा जाकर, आम लोगों के अंदर जा जाकर उनको चेतना जगाई जाए। क्योंकि हर कोई कहता है कि जी सरकार इसके बारे में काम करे, लेकिन सरकार तो करेगी ही, जो भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है वो भी करेंगे, लेकिन हम सबको भी ये ज़रूरत है कि अपनी दिनचर्या में जो जो हम बचा सकें एनवायरनमेंट को, छोटी छोटी चीज़ों में शायद जिसके बारे में हमें ध्यान भी नहीं होता, तो वो सब चीज़ें करके हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान हर रोज़ दें, पूरा महीना दें, पूरा साल दें और पूरी उम्र दें। लास्ट में मैं चाहूँगी आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। मैसेज सबको ये लिए यही है जी कि जो भी पॉल्यूशन है
वो मदर अर्थ कभी पॉल्यूट नहीं करती, वो हम सब पॉल्यूट करते हैं। अब इसको अगर मदर अर्थ को हमें बचाना है, अब सबके बारे में हम सबको खुद को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशंस को इसके पोल्यूशन के बुरे प्रभावों से बचाना है, तो हमें आज ही इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। ना सिर्फ जागरूक होना पड़ेगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। जैसे हम अपने फाइनेंसिस के बारे में खोया पाया का हिसाब रखते हैं, इसी तरह से एनवायरनमेंट के रिलेशन में भी हम हर रोज़ क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, अपने छोटे छोटे कामों से उसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।